Yes, dear students, how are you all? This is chapter number 7, Social Influence and Group Processes, class 12 NCERT, Psychology. Okay, अब ये टॉपिक है 146 पेज पर. Okay, this topic is all about social identity and personal identity. I don't think so I have to elaborate more on this because you can understand the terms. Personal identity, which is unique to an individual. Okay, जो मेरी अपनी है. It could be if I am a good dancer, I am a good dancer. तो वो मेरे अपने one self के साथ देखी जाती है. So it is derived from views of oneself. Or if I am a genius, or maybe I am a mathematician, or maybe I am a good presenter. तो ये मेरी unique qualities हैं. So those unique qualities are basically known as personal identity. Okay. Actually, personal identity is basically derived from views of oneself. Okay. और social identity is derived from group we perceive. कैसे? देखिए, हमारी social identity क्या है? If somebody is a boy or a girl, ये भी हमारी social identity है ना? Self definition sometimes it comes. Self definition में actually दोनों attributes आते हैं जब हम बोलते हैं. तो दोनों एट्रीब्यूट्स कौन से? मेरी पर्सनल आइडेंटिटी और मेरी सोशल आइडेंटिटी. हार्ड वर्किंग, आई एम अ हैप्पी गो लकी पर्सन. ओके, सो दोज एट्रीब्यूट्स which are unique to myself, it's defining my personal identity. If I say I am a hard working girl, तो मैंने क्या कर दिया? दोनों को मिक्स कर दिया. गर्ल मीन्स मेरी सोशल आइडेंटिटी, हार्ड वर्किंग इज यूनिक टू माई सेल्फ, मेरे अपने लिए है, तो ये मेरा फिजिकल करेक्टरिस्टिक को नहीं दिखाता, वो है गर्ल बॉय. और मेरे नेचर और मेरे आई एम अ गुड प्रेजेंटर, ये सब मेरे साथ है, तो ये मेरी सोशल आइडेंटिटी हो जाती है. क्लियर राजे? सोशल आइडेंटिटीज आर डिराइव फ्रॉम ग्रुप वी परसीव. ओके, ग्रुप कुड बी जेंडर ग्रुप, could be this group which is shown on the picture. तो इनकी social identity इंडियन क्रिकेट टीम के पार्ट है. ऑलराइट, सो पॉलिटिकल पार्टी के किसी को बिलोंग करते हैं, तो ये हमारी सोशल आइडेंटिटीज होती हैं. दोनों आइडेंटिटीज को मिला दो तो क्या बनता है? सेल्फ डेफिनेशन. इज इट क्लियर टू एवरीवन? That's nice. Social identity is that aspect of our self concept which is based on our group membership. Tell us what and where we are in larger social context. इससे पता चलता है कि हम किस larger social context में किस में आते हैं. If I say I am a teacher in the community, तो मैं किस context में आती हूँ? Help us locate ourselves in the society. हम कहाँ stand करते हैं उसके बारे में भी हमें पता चलता है. It provide members with a shared set of values, beliefs, goals. क्योंकि मैं किस ग्रुप से बिलोंग करती हूँ, राइट, उससे क्या हो जाता है? मेरी वैल्यूज़, मेरे बिलीव्स, ये सब it provides the members with the shared. Now comes the intergroup. क्योंकि I belong to some group, तो there are possibilities that there can be conflicts. Intergroup conflict हो गया. अब intergroup conflict क्या है? It is a process in which you can use this content for your notes, for learning purpose, because it is taken from NCERT. It's a process in which either an individual or a group perceives that others have opposing interests. क्या पता चला? conflict है ना, तो conflict हमेशा opposition में आएगा और दोनों एक दूसरे को contradict करते हैं. बहुत ही strong feeling होती है इसमें we and other की. हम ऐसे हैं, वो वैसे हैं. जैसे हम boys are better than girls, ये बहुत सारों को misconception है. तो ये कौन सा intergroup conflict है? Gender में. Okay? Then people say industrialists are better than farmers, ये भी conflict है. Are we and they are not like this, they may be illiterate, industrialists कहते हैं. So it means, so इसमें बड़ी strong feeling है, contradiction है. Reasons क्या है group conflict के? बहुत general है, so we should just go through these one by one. सबसे पहला कारण हो सकता है communication gap. There is a faulty communication. Means बॉयज़ एंड गर्ल्स का जो है कि बॉयज़ मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है, तो ये कम्युनिकेशन शुरू से ही फैमिलीज़ में डाल दिया गया या बच्चों में डाल दिया गया. इसीलिए मेल को ये लगता रहा कि वो सुप्रीम है एंड फीमेल्स आर नॉट. हो सकता है दैट इज़ वन ऑफ द रीजंस. दैट फॉल्टी कम्युनिकेशन सिस्टम जिसने हमें ये सिखा दिया कि जो लोअर कैडर की जॉब करते हैं वो इन्फीरियर हैं,
मेड्स हैं, डोमेस्टिक सर्वेंट्स हैं, बिल्कुल नहीं। लेकिन क्या हुआ, हमें कम्युनिकेट ऐसे किया गया, तो ये एक वन ऑफ द रीजंस है। दूसरा रीज़न क्या हो सकता है, रिलेटिव डेप्रीवेशन। क्या होती है, डिप्राइव। मेंबर्स अपने आप को दूसरे मेंबर्स से डिप्राइव समझते हैं, मतलब कम समझते हैं, ओके, तो भी इंटरग्रुप कन्फ्लिक्ट हो जाता है। इस जहाँ कहीं भी डिसकंटेंटमेंट की फीलिंग आएगी, दैट दिस ग्रुप इज़ बेटर देन दैट पर्टिकुलर ग्रुप, ओके, तो वहाँ पर फीलिंग ऑफ डेप्रीवेशन होगा और वहाँ इंटरग्रुप कन्फ्लिक्ट होगा ही होगा। होगा कब, जब कंपैरिजन करेंगे, एक ग्रुप में बी रिच एंड पुअर, ओके, दे आर कंपेयरिंग विद each other, so there will be a conflict. Another reason can be one party's belief. Now when I say one party's belief का मतलब एक पार्टी कहती we are the best, है ना, उन्हीं को बस one party that it is the better than others, ये ही सबसे बेस्ट है, तो भाई दूसरे वाले क्या करेंगे, there will be a tendency that they oppose, they may say why, so conflict gets escalated because every member wants what, they want equal respect, okay. Then comes malevolent intent. malevolent intent समझते हैं हम, तभी मैंने यहाँ मीनिंग दे दिया mean, self centered भी कह सकते हैं, feeling that the other group doesn't respect the norm of my group, मतलब ये समझना कि ये हमारी रिस्पेक्ट नहीं करते, इस वजह से भी वायलेशन हो सकता है। कभी लगा कि the other person is violating the norms of my group, so there will be a conflict. All right. Then रिटेलिएशन। रिटेलिएशन इज रिवेंज में भी हम बहुत बार एक दूसरे को हार्म कर देते हैं। क्यों? बिकॉज समबडी हैज़ हार्म्ड मी इन द पास्ट, सो आई हैव टू रिटेलिएट, आई हैव टू टेक रिवेंज ऑफ दैट, ओके। बायस्ड परसेप्शंस भी हों, ये तो बहुत बार, समटाइम्स इट इज़ द रूट ऑफ मोस्ट कन्फ्लिक्ट्स। कैसे? समटाइम्स इट इज़ मैंशन्ड दैट फीलिंग ऑफ दे एंड वी, तो आप उसे ज़्यादा फेवर करते हैं या गवर्नमेंट इस पर्टिकुलर सेगमेंट को ज़्यादा फेवर करती है, इस तरह से बायस्ड परसेप्शंस रखने पर एक को फेवर करते हैं तो हमारे अंदर कन्फ्लिक्ट की फीलिंग उठना शुरू हो जाता है। देन कम्स द नेक्स्ट वन इज़ कॉम्पिटिशन। येस, ऑफ कोर्स कॉम्पिटिशन है तो कन्फ्लिक्ट होंगे। पीपल आर मोर कॉम्पिटिटिव एज वेल एज मोर एग्रेसिव देन व्हेन इट कम्स टू ऑन देयर ओन। ग्रुप्स एक्चुअली क्यों compete करते हैं? जैसे इंडिया पाकिस्तान है, इनका फाइट है, किस लिए? हमारे रिसोर्सेज जो है, रिसोर्सेज स्केर्स हैं, ओके, तो तभी तो टेरिटरी के लिए फाइट होती रहती है बेटा, है ना। सो बिकॉज वी आर competing, पाकिस्तान वांट्स मोर टेरिटरी, सिमिलरली चाइना वांट्स मोर टेरिटरी, वी वांट्स मोर टेरिटरी, तो क्या होगा, आपस में टेरिटरी, पैसा, सोशल रिसोर्सेज, ये सब इकट्ठे करने के लिए आपस में एक कंपटीशन चलता रहता है। उसकी वजह से what will happen, there will be intergroup conflict. And the last one is perceived inequality. जहाँ कहीं लगे कि हम इक्वालिटी नहीं है, ज़्यादातर हम केसेस में कहते हैं SC/STs में, लो इनकम ग्रुप, हाई इनकम ग्रुप में, ओके, तो वहाँ पर ये फीलिंग आना बहुत ही जायज़ है और हो जाती है। गॉट इट? आपकी बुक में 148 पेज पर एक ऊपर फॉर्मूला दिया है, यू मस्ट रेफर दैट। देयर इट इज़ रिटन, योर लिखा है, योर रिवॉर्ड्स विल बी डिवाइडेड बाय योर कंट्रीब्यूशन, मतलब आपने कितना कंट्रीब्यूट किया और कितना पाया उसकी परसेंटेज निकाल लो। ऐसे ही आप किससे कंपेयर करते हो? अपने फ्रेंड के साथ। अब ये क्यों कर रहे हो? बिकॉज कंपेरिजन इज पॉसिबल, इट्स नेचुरल समटाइम्स। अब आपको लगता है मैंने इतना हार्ड वर्क किया एंड आई गॉट दिस मच मार्क्स, शी डिड लेस वर्क, ओके, और सिर्फ मैम की बटरिंग की एंड शी गॉट मोर रिवॉर्ड्स, तो क्या होगा आपस में? चाहे आप बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं, but there are chances you get irritated and there is a conflict, so that is leading to conflict. All right, so this was all about intergroup conflicts, and there are certain reasons which are discussed here. Then comes Gardner Murphy. He wrote a book in the minds of men. वहाँ पर उसने बताया कि बहुत सारे कन्फ्लिक्ट सबसे पहले मन में उठते हैं, फिर एक्चुअल में आते हैं। मतलब they begin in the minds and then it comes to the reality, they then go to the field. That is what he talked about, and he talked about these 3 levels also. कैसे कैसे? पहला structural condition होता है, okay. So what is structural condition? Structure से भी बहुत बार conflict उठ जाता है। कैसे? बहुत पॉवर्टी स्ट्रक्चर कैसा है? अगर somebody is in high rates of poverty, economic social starvation,
किस में है, स्ट्रैटिफिकेशन में है, इनइक्वालिटी फेस कर रहा है। तो स्ट्रक्चर ही ऐसा है जिसकी वजह से वो कन्फ्लिक्ट होना ही होना है। मतलब कुछ लोग पॉवर्टी में ही दे बॉर्न इन पॉवर्टी, दे लिव इन पॉवर्टी, दे डाई इन पॉवर्टी, तो चांसेस आर वेरी हाई दैट दे रिटेलिएट। ग्रुप लेवल भी हो सकता है। ग्रुप लेवल जब मैंने बोला तो क्या, ग्रुप्स ऑलवेज फाइट विद ईच अदर ओवर रिसोर्सेज। ग्रुप में आप कंट्रीज को भी रख सकते हैं, स्टेट्स कंपटीशन को भी रख सकते हैं, ओके। देन इंडिविजुअल लेवल पर भी हो सकता है, जैसे मैंने कहा इट फर्स्ट स्टार्ट्स इन द ब्रेन, मैन के माइंड में आएगा। तो मैन के माइंड में या तो उसका स्ट्रक्चर ही बेचारे का ऐसा है कि वो पॉवर्टी में है, इनइक्वालिटी झेल रहा है, तो उसके माइंड में आ सकता है। ग्रुप यानी ग्रुप के रियलिस्टिक कन्फ्लिक्ट जो हैं वो ग्रुप से भी आ सकते हैं। ग्रुप में क्या है, पावर गेम हो सकती है, रिसोर्सेज पे लड़ाई हो सकती है। इंडिविजुअल क्यों कब फील करेगा ऐसा मन में, जब उसे लगे कि उसके साथ बायस्ड एटीट्यूड हो रहा है, बिलीव्स उसके ऐसे बना दिए गए कि नहीं, फीमेल्स को बोला गया नो 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 यू आर इन्फीरियर देन बॉयज़, डाल ही दिया, तो उसके मन में कभी ना कभी तो कन्फ्लिक्ट आएगा कि मैं एज अ फीमेल क्यों बर्थ लिया यार, आई वुड हैव बीन अ बॉय, अगर उसे इतनी फ्रीडम और इतना सब कुछ है। तो ये क्या किया, मेरा बिलीफ ऐसा बना दिया गया। पर्सनैलिटी करेक्टरिस्टिक्स भी हो सकते हैं। इफ समबडी इज ऑफ लो वीक पर्सनैलिटी, उनके मन में बहुत कन्फ्लिक्ट्स होते हैं, राइट। देन कम्स ड्यूश आइडेंटिफाइड द फॉलोइंग कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इंटरग्रुप कन्फ्लिक्ट। अब अगर कन्फ्लिक्ट हो गया तो क्या होगा, ऑफ कोर्स जब कन्फ्लिक्ट हो गया, इट्स समथिंग लाइक मेरे और मेरी मेड में घर में कन्फ्लिक्ट हो गया, मन में आया, उसके आया मुझे ऐसे नहीं करती हैं, मुझे ऐसे नहीं देती हैं, मेरे मन में आया, तो हमारी आपस में सबसे पहले बोलचाल बंद, कम्युनिकेशन पुअर हो गया। हम जो पहले एक दूसरे से बात करते भी थे ओपनली, अब वो भी हम बंद कर देंगे और मन ही मन नई नई स्टोरीज बनाएंगे और कन्फ्लिक्ट हो जाएगा। मैग्नीफाइंग डिफरेंसेस हो जाएंगे। कैन यू अंडरस्टैंड मैग्नीफाइंग डिफरेंसेस, एलैबोरेटेड, और ज़्यादा डिफरेंसेस जो हैं वो इफेक्ट बढ़ जाएगा, राइट। ओके, फिर मुझे अनफेयर चीज़ें ज़्यादा दिखेंगी। इट्स समथिंग लाइक अगर घर में सिबलिंग, फीमेल का मेल है, मेल का फीमेल है, और मन में ये कन्फ्लिक्ट हो गया कि मेल को ज़्यादा अच्छे से ट्रीट किया जा रहा है, तो एक छोटी सी बात भी हमें बहुत बड़ा इफेक्ट दिखाएगी, चाहे वो इतनी बड़ी थी भी नहीं। इंक्रीज ओन पावर एंड लेजिटिमेसी, व्हाट डज दिस मीन। अब एक्चुअली ईच साइड ट्राइज टू इंक्रीज इट्स ओन पावर, हर साइड, मैं अपनी बढ़ाने की कोशिश करूंगी, द अदर पर्सन विल डू इट फॉर हिमसेल्फ। Now what will happen as a consequence? The conflict gets escalated. It will shift from specific issues to much larger issues. पहले तो बहुत छोटे छोटे होते थे, अब बड़ी बड़ी बातें होने लग जाएंगी। Last is escalation of conflicts due to other factors. कौन से other factors हो सकते हैं? Those could be threats, right? इन ग्रुप आउट ग्रुप जो कंपटीशन होता है, आपकी बुक में जो दिया है वो है वंस कन्फ्लिक्ट स्टार्ट्स सेवरल अदर फैक्टर्स लीड्स टू एस्केलेशन। मतलब एक बार अगर मन में आ गया ना एक छोटा सा पॉइंट भी, फिर तो राई भी आ गई, तो अब पहाड़ बनेगा ही बनेगा। अब तो और भी फैक्टर्स मुझे याद आने लगेंगे, पहले भी ऐसे होता था, ये करते थे आप, पेरेंट्स को बोलने लगूंगी मैं अगर मेरे सिबलिंग के साथ इस तरह से मैंने माइंड में ले आए। This is what Deusch identified, all the further consequences. Last portion of this chapter is conflict resolution करें कैसे। अब हो गया, पता चल रहा है ये एस्केलेट होगा, इसे ठीक कैसे करें। तो सबसे पहले क्या करें, सुपर ऑर्डिनेट गोल्स को क्या करें, इंट्रोड्यूस करें। When I say सुपर ऑर्डिनेट गोल्स क्या होंगे, शरीफ की स्टडी याद आ गई, उसमें क्या किया था उन्होंने, कलेक्टिव गोल्स। ओके, अ सुपर ऑर्डिनेट गोल इज म्यूचुअली बेनिफिशियल टू बोथ पार्टीज। अगर दोनों ही करेंगे वर्क इकट्ठे, ओनली देन दिस विल बी गिवन। सो बोथ ग्रुप्स वर्क कोऑपरेटिवली, तभी ग्रुप कन्फ्लिक्ट खत्म होगा, जैसे हमने शरीफ के उसमें देखा था। ऑल्टरिंग परसेप्शन, मतलब परसेप्शंस को धीरे धीरे पेरेंट्स को अगर मन में आ ही गया है बच्चे के कि गर्ल्स को इन्फीरियर ट्रीट किया जा रहा है, तो अब धीरे धीरे समवन हैज़ टू ऑल्टर दी परसेप्शन। कैसे, प्रमोट एम्पथी, एक दूसरे के साथ एम्पथी करें, राइट। एंड दे शुड बी टॉट टू स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच, शुरू से शुरू करते हैं, कोई बात नहीं हमारे जो कन्फ्लिक्ट थे हम सब भूल जाते हैं, अब फिर से शुरू करते हैं। सो बाय डूइंग दिस इट कैन वर्क वेरी वेल। इंक्रीजिंग इंटरग्रुप कॉन्टैक्ट, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन बढ़ाना, न्यूट्रल ग्राउंड्स पे। एक तो होता है पिछली बातों को लेके तुमने ऐसे किया था, ये तो फिर बढ़ाने वाली बात हो जाती है, इससे हमारे कन्फ्लिक्ट बढ़ते हैं।
बट जैसे पिछली बातों को सबको छोड़ दीजिए और एक न्यूट्रल ग्राउंड्स पे आकर एक दूसरे के साथ मिलकर कुछ काम करते हैं। अगर इन्हें कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स में किसी इवेंट में लगा दिया जाए, जैसे भाई बहनों की भी लड़ाई को जब पेरेंट्स ने ख़त्म करना होता है ना, तो दोनों को एक मिलकर काम देते, चलो टेबल लगाओ, एक बच्चा ये कर लो, एक ये। अब आपने क्या किया, उनको एक प्रोजेक्ट दे दिया, गार्डनिंग करो, चलो आज ऐसे करो, ये वाले प्लांट्स लगाओ। तो क्या हुआ, उससे वो भूल जाएंगे और फिर आपस में इंटीमेसी बढ़ जाएगी। रीड्रॉइंग ग्रुप बाउंड्रीज, जो बाउंड्रीज हमने खुद क्रिएट कर ली थी, they are done with certain conditions, they needs to be redefined. This can be done by creating certain conditions, right? कुछ कॉमन टास्क, कुछ इस तरह से, ताकि उनकी बाउंड्रीज को दो अलग अलग बाउंड्रीज की बजाय कॉमन बाउंड्री में डाल दिया जाए। देन कम्स द नेगोशिएशंस। नेगोशिएशंस हम समझते हैं क्या होती हैं, इट इज़ द रेसिप्रोकल कम्युनिकेशन। अब जब भी नेगोशिएशन क्या है, यू गो एंड बाय, यू आर प्लानिंग टू बाय अ गिफ्ट from Archie's, so you go to Archie's, what do? You say no sir, please आप इतना लगाइए तो मैं लूँगी। The other person will also say something. So ये reciprocal communication है, you say something, the other person will also say, तभी negotiation होगा। और फिर लास्ट में हम क्या करते हैं, एक एग्रीमेंट पे पहुंच जाते हैं, ठीक है चलो भैया, ना तुम्हारी रखते हैं ना मेरी, हम इतने में ले लेंगे। सो दैट्स कॉल्ड नेगोशिएशन। तो ऐसे ही कन्फ्लिक्ट्स रिजॉल्व हो सकते हैं अगर हम थर्ड पार्टी इन्वॉल्व करके आपस में इनकी नेगोशिएशंस करा के किसी एक कॉमन कंक्लूजन पर ले आएँ। आई एम श्योर इट इज़ क्लियर। स्ट्रक्चरल सोल्यूशंस भी हो सकते हैं, वो कैसे, सोसाइटल चेंजेस करके, कुछ सोसाइटल रिसोर्सेज हैं जस्टिस में, ओके, देर आर मैनी थिंग्स जिनमें आप इक्वालिटी शो की जाए। जैसे बहुत बार SC ST कोटाज बना दिए गए कि उन्हें जस्टिस दे दिया गया, उनको स्ट्रक्चर से ही, जैसे पॉवर्टी का स्ट्रक्चर था ना हमने पढ़ा, इनइक्वालिटी का स्ट्रक्चर, उस स्ट्रक्चर में ही अमेंडमेंट्स कर दिए गए। ऑलराइट, एंड द लास्ट पॉइंट ऑफ दिस चैप्टर इज रिस्पेक्ट फॉर अदर ग्रुप्स नॉर्म्स। उन्हें सेंसिटिव बनाया गया इतना कि आप अपने ही नहीं दूसरे ग्रुप को भी उतना ही रिस्पेक्ट दें, बी सेंसिटिव टुवर्ड्स ईच अदर। तभी तो क्या होगा, कम्यूनल राइट्स जो हैं वो कम हो जाएंगे। जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ये सब आपस में अगर झगड़ा कर रहे हैं तो इट्स लाइक जस्ट टेलिंग देम दैट रिस्पेक्ट ईच रिलीजन बिकॉज एवरी रिलीजन इज इम्पॉर्टेंट। All right, so this was all about chapter 7. Thank you very much for listening. I have a suggestion that you must do NCERT back exercise review questions thoroughly. All right, thank you, bye bye, take care.